Hello students, as we have completed the concept of online transactions and modes of payment, today we are going to start safety and security of transactions. हमने देखा था कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है और आज हम देखेंगे कि कोई हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे होती है. So there are many risks in online transaction in comparison of traditional money transactions. ट्रेडिशनल मनी ट्रांजैक्शन मतलब कि हम जैसे बाइंग मतलब परचेस करते हैं नॉर्मली शॉप में से, वो उसको ट्रेडिशनल मनी ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. तो उसके 3 पार्ट्स है: रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन, रिस्क ऑफ डेटा, रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सीक्रेट डेटा. तो ये सारे जो रिस्क है वो उसमें आ जाते हैं. फर्स्ट है सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शंस. For the dispute among the online seller and customer, at times of argument, the seller remains that the customer has not placed order properly. At times, it may also happen that the customer has not placed order at all. The complaints like non-receipt of goods at the place mentioned or receipts of goods not complying with the required quietly remain common in online transaction. To prevent this, verification of identity and address should be done during the registration of account. Further, customers should prefer to purchase goods from reliable and well established website only. कस्टमर को जो रिलायबल वेबसाइट है उसी में से शॉपिंग करनी चाहिए, कहीं से भी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए. और दूसरी चीज़ है कि जब सेलर है उसने जब रजिस्ट्रेशन टाइम पे उसका जो एड्रेस है वो वेरीफाइड नहीं किया है, फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं किया है और कस्टमर ने जो एड्रेस डाला वहीं पे जो जब गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं तभी ये सारी प्रॉब्लम्स होती है. उसके बाद है सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन का रिस्क है. देर आर मेनी रिस्क रिलेटेड टू डेटा. इंपॉर्टेंट डेटा कैन बी चेंज, स्टोलन और पर्पस ऑफ इंजॉयमेंट और विद सेल्फिश मोटिव. यू मे फेमिलियर विद द वर्ड वायरस और हैकिंग. वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम. इट क्रिएट्स क्लोन्स और replays the damages and data in computer system. Virus interprets on screen, prevents the computer to work. It may damage the data files or whole system. Antivirus software is to be used to prevent this virus. हम सबको पता है कि कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तभी भी डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है. उसके बाद है सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्राइवेसी. Internet is open platform. Once the information is placed on internet means it become public. Information such as email address, phone number, bank account number, password provided during online transactions and many more business information are required to keep confidential while dealing online. ऑनलाइन जब डीलिंग करते हैं तब पासवर्ड है, बैंक अकाउंट नंबर है, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए. There are possibilities of misissuing information. Customer must change his password periodically. कस्टमर को अपना जो पासवर्ड है वो पीरियोडिकली चेंज कर देना चाहिए. आउटसोर्सिंग. When a miscellaneous work or process is handed over to other group by business group as per contact or prescribed time, it is called outsourcing. Outsourcing is necessary to concentrate on main activities of the company. Thus, companies outsource minor activities. Beside this, some business units make outsourcing of intellectual works even though it is their core activity. Outsourcing can be done within the company or outside the company. कोई भी कंपनी है उसका जो मिसलेनियस वर्क है वो दूसरे बिजनेस ग्रुप को जब दे दिया जाता है तो उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं. और कभी कभी क्या होता है कि विद इन कंपनी भी होता है आउटसोर्सिंग और आउटसाइड मतलब कि आउटसाइड द कंपनी भी आउटसोर्सिंग जो वर्क है वो होता है. उसके बाद है कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट एंड फील्ड ऑफ BPO. तो BPO इसका फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? It means to get contractual services of external economy of group to complete special work or process of a company. Example देखें तो main purpose of the companies that want to outsource their work
of call centers or data entry is to reduce their expenditure. मतलब कि कोई छोटा सा काम दूसरे बिजनेस यूनिट को देते हैं तब उसको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं, उसकी एक्सपेंडिचर भी कम होती है. द मेन रीज़न ऑफ आउटसोर्स द वर्क ऑफ कॉल सेंटर्स main reason of popularization of outsourcing is the human resources of such work are available at lower rate in some countries. So the countries like India, China who have larger population get first preference for BPO. जिसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उसको उसके पास ह्यूमन बींग्स ज़्यादा होते हैं तो इसको ये बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं. रिक्वायरमेंट क्या है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की? तो BPO reduces the workload of employees of a company from the responsibility of their daily minor works. जब छोटे छोटे वर्क होते हैं उसकी जो वर्कलोड है वो कम हो जाती है. So these employees can focus more to the productive activities and of the customers. उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कॉस्ट कटिंग. Besides, business units can reduce expenditure by outsourcing in front office works like बिलिंग, परचेजिंग, डेटा एंट्री एंड मार्केटिंग सर्वे. तो इसके लिए जब ह्यूमन बींग्स है उस जो कोई भी हमारे पास ह्यूमन एसेट है तो ये सारे काम जो उनके लिए हम रख दें तो ये बेनिफिट रहता है. सेकंड है फोकस ऑन प्रिंसिपल वर्क्स ऑफ कंपनी. मैनेजर्स कैन स्पेशली फोकस टू द प्रिंसिपल वर्क्स ऑफ द कंपनी बाय आउटसोर्सिंग डेली वर्क्स ऑफ प्रोफेशनल यूनिट. तो प्रिंसिपल वर्क में ज़्यादा काम होता है. Benefits of efficiency. Business concern can get quality work by outsourcing instead of recurring and training employees. जो प्रोफेशनल है उसके पास ही काम करवा लेते हैं तो ये जो उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है. To cater the dynamic demand, BPO companies provide facilities to cater the ever changing demands of the customers की डिमांड चेंज हुई तो ये कंपनीज भी उसमें चेंज लाती है. प्रॉफिट इंक्रीज होता है, प्रॉफिट के लिए तो सब वर्क होता है तो प्रॉफिट इसमें इंक्रीज होता है. बिजनेस यूनिट कैन आउटसोर्स देयर सब्सिडरी फंक्शंस एंड पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स द मेन फंक्शंस लाइक इंक्रीज इन सेल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. ये सारी चीज़ें होती हैं. अब उसका स्कोप क्या है? तो बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग. It includes internal functions like business billing, purchase data. And second है फ्रंट ऑफिस. तो उसमें क्या होता है? मार्केटिंग और कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज. तो इसके लिए फ्रंट ऑफिस में होता है. अब लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट एंड फील्ड ऑफ KPO. कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट एंड फील्ड ऑफ KPO. KPO का फुल फॉर्म है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. तो KPO means outsourcing of knowledge based process. BPO is work oriented while KPO is knowledge oriented. Process related to works are focused in BPO while mostly the process related to knowledge are focused in concept of KPO. KPO includes processes which accept advanced knowledge skills are responsible for the development of company. मतलब ये KPO का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉलेज बेस्ड है. उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो अचीवमेंट ऑफ बेस स्किल्स. बेस स्किल है उसकी अचीवमेंट हो इसलिए ये KPO का कॉन्सेप्ट रहता है. An institution providing services of KPO possesses advanced skills on account of investing heavily in human resource and their training. As a result, business unit gets its advantage of minimum cost. KPO provides the best result by maximum investment in techniques, human resource and systematic method. They have achieved advanced expertise with experience of work. This proficiency of skills gives maximum benefit to the business units with minimum investment. Second है maximum uses of sources. Available resources are limited in business units. Human resources of units become free because of outsourcing. They can be used in customer oriented services. थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. जब ये नॉलेज की बात है तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो आसानी से हो जाता है. सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर एडवांस टेक्निकल एक्सपर्टाइज कैन बी सोल्व
इजीली बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग। फोर्थ है स्पेशल अटेंशन टू प्रिंसिपल फंक्शन। इसमें भी वही बात है कि बिजनेस यूनिट्स है वो उसके प्रिंसिपल फंक्शन है, उसके मेन फंक्शंस है, उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इफ़ अ स्कूल प्रीफर्स टू आउटसोर्स वर्क लाइक कंप्यूटर एजुकेशन, कैंटीन फैसिलिटी, स्टेशनरी फैसिलिटी, देन इट कैन पे मोर अटेंशन टू इट्स प्रिंसिपल वर्क ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। मतलब स्कूल की जो यूनिट है वो कंप्यूटर एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग को देते हैं, कैंटीन फैसिलिटी अलग डिपार्टमेंट को देते हैं, तो इसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रिंसिपल फंक्शन में ज़्यादा वर्क होता है। उसके बाद है मैक्सिमम यूज़ ऑफ मनी। जो मनी है, इफ़ आउटसोर्सिंग ऑफ सम फंक्शंस इज प्रिफर्ड इन बिजनेस यूनिट्स then it is not required to invest capital for these functions. As a result, business units can use its capital for maximum business development. उसके बाद है reduction of expenditure. Decrease in expenses is one of the principal reasons of population. Expense of business units are reduced by doing outsourcing. इस expense भी इसमें reduce हो जाते हैं। उसके बाद है रिडक्शन इन रिस्क। तो रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हम करते हैं इसके लिए कि रिस्क हमारा रिड्यूस हो। मार्केट कॉम्पिटिशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, रूल्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स आर चेंज रैपिडली इन रिसेंट टाइम्स, सो इन्वेस्टमेंट मेड बाय बिजनेस यूनिट्स विल बी ऑफ नो यूज। दिस रिस्क आर रिड्यूस बाय आउटसोर्सिंग। तो रिस्क भी रिड्यूस होता है। अब उसका स्कोप क्या है? तो बिजनेस एंड मार्केट रीचेज, सेकेंड है लीगल सर्विसेज, थर्ड है मेडिकल सर्विसेज, फिर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस उसमें भी यूज़ होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्योंकि ये नॉलेज बेस है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी है और एनिमेशन एंड डिज़ाइन, तो ये चीज़ भी इसमें इंक्लूड होती है। सो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 था वो कंप्लीट हुआ है ओसी में।